Good morning, students. So now today we will do the next part of chapter number 4, motion in a plane. In the previous video we have discussed about that multiplication of a vector by a real number and product of the vector and the scalar quantity, vector and vector quantity, scalar and scalar quantity, and different type of vectors. So now today we will start addition of a vectors. How we will add vectors. So now the first is addition of vectors. So in that topic we will discuss about how the vector are added. So first we will discuss that what is the addition of parallel vector. If two vectors are parallel, then how they are added with each other. So now for example, this is a vector A. Clear? It is represented by O and this is A. Clear? And this is another vector. Clear? And this is vector B. This is vector B. And it represented by that is BC. Like this. So both are vector in the same direction. So what is the resultant of these vector? So now if we write it, when we add these two vector, if R is the resultant of this, means 3 plus 2 5. For example, एक वेक्टर 3 है, एक 5 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो 5 है वो रिजल्टेंट है. So the resultant of these vector represented by R. Clear? And this R is equal to OA. Or how we'll add them? Clear? So now we will add like this. This is O, this is A. Clear? So head of one vector and tail of another vector. And this is C. So हमने क्या देखा यहाँ पे कि this is vector A and this is vector B. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो ये पॉइंट था, ये this point, clear, where B and A and B point coincides, एक दूसरे के ऊपर आएंगे ये. So the head of one vector is joined with the tail of another vector. So this A, B, this is OA and then B. So resultant can be written as OA plus AC, or you can write here B also, BC. So now if we add it OA plus BC, so OA plus BC, that is OC. So it represented by OC. So this is resultant R. और OC किसके इक्वल है? अगर ये इतना A था, ये B था, so the R is equal to vector A plus vector B. So this is the addition of two parallel vector. Now the addition of two anti-parallel. Anti-parallel means they means opposite to each other, कि वो जो vector होंगे एक दूसरे के opposite हैं. So the addition of anti-parallel vector. Clear? So what is in the case of anti-parallel vector? We will see it. Next हम देखेंगे addition of anti-parallel vector. What is the meaning of anti-parallel? Clear? For example, this is vector A. Clear? This is vector A and this is vector B. Clear? Both are parallel to each other. Both are parallel, but direction is opposite. So this is called anti-parallel vector. So how these vectors are added with each other? Clear? So for addition of this type of vector, simply we have to do that. Their resultant R is represented by vector A plus vector B. We are added simply, but here the direction is opposite. So if the direction of two vector is opposite, so one of the vector you have to taken negative. So here comes out to be minus. How it minus came? I will explain you. Okay, this is vector A. This is vector A. So if you want to change the direction of vector B, अगर हम इस vector B की direction को change करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर A था और यहां से मैंने इस वेक्टर B की जो डायरेक्शन इधर थी उसको मैंने चेंज कर दिया. तो अगर ये इधर वाली साइड ये प्लस B था तो उधर आपका ये होगा माइनस B. क्लियर? सो व्हेन वी ऐड दीज टू वेक्टर, सो R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बट दिस वेक्टर B इज ऑफ माइनस. और सिंपली इफ दिस इज O, दिस इज A. Clear? This is B and this is C. So this is O, this is A. Now direction is opposite. So this is B and this is C. This point is C. But previously the CB
क्लियर। नाउ दैट CB इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो पहले ये था, अब ये ऐसे हो गया, दिस इज C एंड दिस इज B, सो दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इफ दे आर अपोजिट मीन्स इफ इट इज प्लस B दैट बिकम माइनस, मीन्स जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो आपका जो वेक्टर है वो आपका अगर पहले प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सो दिस इज द एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। सिंपली वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और वो बन गया आपका, आएगा प्लस ही, लेकिन जो B है वो किसका है, माइनस का है। तो ये था आपका एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट आपका भी हमने जो डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि अगर वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। अब जो अगला आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग डिफरेंट डायरेक्शन, कि जब कोई दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करें उनकी एडिशन कैसे होगी। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर A, क्लियर, एंड दिस इज वेक्टर B, क्लियर। सो दिस वेक्टर A and this vector B, so how these two vectors are added to get the result। so for that what we have to do, इस वेक्टर को उठा के हम कहीं पे ले सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और इसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज होनी चाहिए, मींस ये हमेशा ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ आप यहाँ पे जहां मर्जी ले जाओ। सिमिलर ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो हमने इनको क्या किया कि दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, क्लियर। ये वेक्टर A था, ये वेक्टर क्या था, B था, और आपने क्या देखा, जैसे हमने पहले एक का हेड दूसरे की टेल कोइंसाइड होनी चाहिए, क्लियर। जब एक का हेड दूसरे की टेल कोइंसाइड होगी तो उसको बोलेंगे सेम ऑर्डर, दैट इज सेम ऑर्डर, क्लियर। व्हेन हेड कोइंसाइड विद टेल दैट इज सेम ऑर्डर। तो हाउ विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज फाइंडेड बाय द थर्ड साइड। हाउ इट विल फाइंड इट। सो अगर मैं क्या कर देता हूं लाइक दिस, सो दिस R इज द रिजल्टेंट of this vector A and B which is equal to vector A plus vector B। अब ये आया कहां से है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। सो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है if the two vector represents the two side of triangle, means अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर A और वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा दैट रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। सो दिस इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, कि अगर दो वेक्टर को हम किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल विच इज नोन एज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सुन देना ध्यान से, ये यहां से यहां गया तो ये था सेम ऑर्डर, बट द रिजल्टेंट इज इन द अपोजिट ऑर्डर। देखो ये क्या था, देखो ये हेड है और ये टेल है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं टेल से टेल और हेड से हेड कोइंसाइड कर रहा है। मींस अगर ये सेम ऑर्डर था तो जो ये ऑर्डर है ये आपका क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ द टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर is represented both the magnitude and the direction by the third side of triangle taken in the opposite order। कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड किन्हीं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस लाइक दिस, सेम ऑर्डर मतलब है एक का हेड दूसरे की टेल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड by the third side of the triangle but in the opposite order। ये order क्या आपका opposite है, तो this is known as triangle law of vector addition। इसको हम कहते हैं triangle law of vector addition। ये आया कहां से इसको हम समझेंगे अभी। now we'll derive the expression for the triangle law। आप कईयों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि ये सर ने कैसे लिख दिया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
कि यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री है। क्लियर, यहाँ पे एंगल आपका क्या 90 डिग्री है, तो वहां से रिजल्ट बना है, उसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। क्लियर, सो नाउ विल सी इट कि व्हाट इज द result of that, कि from where that result came. So now we will derive the relation for the triangle of vector addition. So now your next topic is triangle law of vector एडिशन। क्लियर, सो अगेन हम क्या करेंगे, ये कोई वेक्टर है आपका, दिस इज वेक्टर ए। क्लियर, और ये आपका कोई है वेक्टर बी। दोनों का ऑर्डर अलग अलग, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, या वी कैन से दैट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इनको कैसे करेंगे, तो फिर से हमने क्या करना है, यहां से हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर बी को यहां से उठा के हमने यहां पे कोइंसाइड करवा दिया, इसकी हमने ट्रायंगल बनानी है, ये देखो ऐसे, तो ये आ गया वेक्टर बी। क्लियर, तो अब हम कह देते हैं कि दिस वेक्टर बी, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सपेंड कर दिया कि हियर इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। क्लियर, सो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। क्लियर, so if these two vectors represent the two sides of a triangle in the same order, then the resultant of these two vectors represent by the third side of triangle but in opposite order. So this is the resultant R of these two vectors. We have to find this. Clear, इनको नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे। For example, this is O, this is A, this is B. तो हमने ये R निकालना है यहाँ से। ये R कैसे आएगा, इसको हम देखते हैं, हाउ दिस R वी कैन कैलकुलेट। तो मैंने यहां से क्या किया, आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर लाइक दिस, दिस इज परपेंडिकुलर, वी से दैट इट इज C। क्यों, क्योंकि बेटा ये हमने साइड निकालनी है इस ट्रायंगल की, लेकिन अब यहां से निकल सकती है इन ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, OCB के अंदर अगर हम OB निकालना चाहते हैं तो OB सिंपल निकलेगा, बिकॉज OB इज हाइट, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये आपका जो OB है ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस और ये है परपेंडिकुलर। सो योर OB कैन बी रिटन एज, क्लियर, दिस OB कैन बी रिटन एज, व्हाट इज OB, दैट इज OC स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से आया, ये आया पाइथागोरस से। कहां से आया आपका, पाइथागोरस का था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये अपना आ गया OC BC। हमने तो OB चाहिए रिजल्टेंट, बिकॉज हमने बोला था अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड साइड होगी उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। हमने ये वैल्यू निकालनी है और हम ये कह देते हैं कि द वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, कि जो ये वेक्टर ए था, क्लियर, और जो ए और बी का जो रिजल्टेंट है इनके बीच में जो एंगल है ये अल्फा है। क्लियर, वी कैन से दैट the resultant of A and B is inclined at an angle alpha with vector A, कि जो वेक्टर A और वेक्टर B के रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है वो आपका अल्फा है। तो अब हमने कुछ नहीं करना, हमने OC की वैल्यू निकालनी है, हमने यहां से BC की वैल्यू निकालनी है। सो वी नो दैट कि द OC कैन बी रिटन एज, ये जो आपका OC इसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AC। क्लियर, अब ये ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब जो ट्रायंगल ABC है आपके पास, ये राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। अब आपको एक तो निकालना है बेस और एक निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज करेंगे, जो हमने लिखा था PBP HH, वो वाला हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना है AC।
तो AC है बेस। तो जो बेस होता है वो किस में होता है? होता है कोस के अंदर। तो जो आपका कोस होता है कोस थीटा, दैट इज वी राइट हियर PBP HHB, ये होता है आपका। अब जो आपका कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो इस ट्रायंगल में बेस आपका क्या है? AC है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AB है। तो यहां पे आपका आ जाएगा AC डिवाइड बाय AB। सो अगर मैं यहां से AC निकालता हूं तो दैट AC कम्स आउट टू बी AB कोस थीटा। क्लियर? निकालिए हमने AC। अब सिमिलरली BC निकाल लेंगे। अब BC है आपका क्या? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की रेशियो लगेगी साइन वाली। सो नाउ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। क्लियर? सो यहां से जो आपका BC आएगा दैट BC इज AB साइन थीटा। क्लियर? तो हम यहां तक पहुंच गए इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या है? देखो OC की वैल्यू है अपने पास। OC क्या है? OA प्लस AC। तो OA अपने पास क्या है? OA इज रिप्रेजेंट वेक्टर A। AC हमने ये निकाल लिया। क्लियर? उसके बाद हमें चाहिए BC और BC हमने ये निकाल लिया। तो ऑल दीज वैल्यू विल पुट इन दिस इक्वेशन। सो नाउ विल पुट इट। सो देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पे। So in place of OB we can rewrite vector R square. OC can be written as OA plus AC. So OA is equal to vector A plus and AC is equal to AB cos theta. AB cos theta. Or simply first we write here. Here comes out to be OA plus AC square plus BC square. In next step we will put the value. OA is equal to vector A. Clear? Vector A plus AC आपका है AB cos theta. अब जो AB है आपका AB that is represented by vector B. So it can be represented by vector B cos theta. So here comes out to be vector B cos theta square plus BC can also written as here is also vector. This is BC is equal to AB cos theta and AB is equal to vector B. So here we can write vector B. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा vector B sin theta whole square. Clear? So now what happen in the next step? We will open it and reach to the result. So now here is a A plus B whole square. So we will open this. So here comes out in vector A square plus vector B cos theta whole square plus 2AB cos theta. इस आइडेंटिटी खोल दे अपने A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर इस पूरे टर्म क्या है? B स्क्वायर 2AB cos theta प्लस here is B sin थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम इनको रीअरेंज करना है। तो यहां पे आ जाएगा वेक्टर ए एज इट इज आ गया। जब इसको मैं वेक्टर ए स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे बन जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। क्लियर? और ये आपका बन जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर बी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इन दोनों में से हम यहाँ पे आ गया वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ से वेक्टर बी हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे वेक्टर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। किसमें से? इन दोनों टर्म में से। इस टर्म में से अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इन द ब्रैकेट लेफ्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। क्लियर? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो 1 होता है। तो अपने पास आखिरी रिजल्ट क्या है? हमारे पास जो आखिरी रिजल्ट आया, तो आपके पास जो आखिरी रिजल्ट था वो था वेक्टर आर स्क्वायर। इधर वेक्टर आर था सारा, इधर आपका क्या चल रहा है? वेक्टर आर।
वेक्टर आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर, ये आपका है 2ab कोस थीटा। तो ये आपका गया रिजल्टेंट किन्हीं भी दो वेक्टर का। तो आर जो रिजल्टेंट है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये आपका था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आपका यहां से आ गया रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। एक्चुअल में दिस ऑल आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेक्टर, ठीक है, वो आपको आगे सिखाएंगे हाउ विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट था। अब अपने अगर ये अल्फा निकालना है ऐसे, ये दिस अल्फा वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा। क्लियर। सो इस अल्फा को निकालने के लिए फिर ट्रायंगल लेंगे हम ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, हमारे पास वैल्यू आपकी ये बेस भी आपके पास है और परपेंडिकुलर भी आपके पास है। तो यहां से अगर मैं टेन निकालता हूं, टेन अल्फा, दिस टेन अल्फा, तो टेन किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या BC डिवाइड बाय, और जो बेस आपका हो गया OC, तो यहां पे क्या आ जाएगा OC। तो BC की वैल्यू आपकी क्या है, BC की वैल्यू थी आपकी B sin थीटा डिवाइड बाय, नीचे आपका जो OC था वो वेक्टर A डिवाइड बाय वेक्टर B cos थीटा। So in that way you will find the angle between the vector A and the resultant of vector A and B. So this is the angle alpha. तो हम जब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि हमें वेक्टर A पता होगा, वेक्टर B पता होगा। These all are the magnitude of these vector। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा की वैल्यू पता होगी, कोस थीटा की थीटा पता होगा, तो सबको पुट करके हम यहाँ से आपका वो वैल्यू को निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ थोड़ी डेफिनेशन में चेंज है। ये द टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बाय द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल कि ये आपका वेक्टर ए पी है मान लो, क्लियर, रिप्रेजेंट द वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज अनदर वेक्टर क्यू represent the another side of parallelogram. This is O and this is A, this is C. So this vector Q represent one side and vector P represent another side of a parallelogram. Clear? So the resultant of these two vector is represented by the diagonal of a parallelogram. So this is the resultant of vector P and Q which is represented by the diagonal parallelogram. इसको करना कैसे है? We will draw a vector parallel to this like this. We know that कि the opposite side of parallelogram are equal and parallel. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक साइड ड्रॉ कर दी like this. क्लियर। और अगर इस वेक्टर P और Q के बीच में एंगल थीटा था, क्लियर, तो हमने क्या किया, जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, अगर ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो। क्लियर। उसके बाद अगर ये आपका क्या था, वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था, तो यहां पे जो आपका ये वेक्टर होगा like this. So this is also vector P and this is also vector Q. So what is a parallelogram law vector addition? If the two side of parallelogram represented by the two vector, then the resultant of these two vector is represented by the diagonal of a parallelogram. So this is known as the parallelogram law of vector addition. Clear? So what is the exact definition?
If the two vector represent both the magnitude and the direction by the adjacent side of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represent both the magnitude and the direction by the diagonal of the parallelogram. सिंपल सी बात है बेटा कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो आपका डायगोनल है वो इन वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपल सी बात है, वही पहले की तरह बिल्कुल सेम टॉपिक रहेगा आपका। क्लियर? सो नाउ वी विल टेक दिस इज ओ ए, दिस इज बी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाएगा। सो ये बन गया सी। तो फिर से आपका जो ये टॉपिक है वही बन गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। करना क्या पहले की तरह, वी हैव टू फाइंड द ओबी बिकॉज ओबी इज द डायगोनल। सो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, OC square plus BC square. So simply OC we will find that OA plus AC, AC फिर से निकाल लेंगे। आपका AC क्या आएगा, फिर से वही आपने ये ट्रायंगल लेनी है ABC, इसमें से आपने AC मतलब बेस निकालना है तो cos थीटा से, BC निकालना है तो sin थीटा से। तो जो AC आएगा वो आपका आ जाएगा, अगर ये Q था तो ये वेक्टर भी आपका क्या Q है, तो ऐसे आएगा वेक्टर Q cos थीटा। क्लियर? और जो आपका BC होगा वो आएगा वेक्टर Q साइन थीटा। फिर से यहाँ पे पुट करेंगे तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी तो आएगा OC, OC आपका क्या है OA प्लस AC, तो OA B और ये आपका Q, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर P प्लस Q वेक्टर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आएगा Q वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे तो फिर से बनेगा वेक्टर P का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहां से और यहां से हम Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा वेक्टर P का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Q स्क्वायर वेक्टर, और यहां से जब हमने कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचा तो Q को जब हमने कॉमन लिया तो मिल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो आपका आ गया 1 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 2PQ कोस थीटा। तो बेटा ये बिल्कुल ही आपका वही सेम रिजल्ट है, सिर्फ ये था कि जो वो ट्रायंगल थी उसको हमने पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये आपका वही है क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सिर्फ डेफिनेशन में चेंज है, क्या है, इधर टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ अ parallel adjacent side of parallelogram by the magnitude and the direction. Then the resultant of these two vector represent by the diagonal of a parallelogram by the magnitude and the direction. कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। अब यहाँ से अगर हमने क्या कह दिया कि अगर ये एंगल अल्फा है किसके बीच में, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं। टेन अल्फा किसके इक्वल अभी निकाला था पहले की तरह, तो यहाँ पे आएगा Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कोस थीटा। क्लियर? तो ये आपका टेन, इसमें दोनों के दोनों टॉपिक आपके सेम है, सिर्फ वो ट्रायंगल था, ये पैरेललोग्राम है। तो दिस इज ओवर फॉर टुडे। इस वीडियो को देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? इसको करो कंप्लीट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करें कि यहाँ पे दिक्कत है, उसको हम दोबारा बताएंगे। थैंक यू।